السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، کراچی شہر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کہا جاتا ہے، جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر لگائی جاتی ہے۔ اس سال بھی وہ منڈی وہاں پر آباد ہو چکی ہے اور اس کی جو رونقیں ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ وہاں جو شہری جا رہے ہیں خریداری کے لیے، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور وہاں منڈی کی اپنی جو رونقیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہیں۔ وہاں وی آئی پی سٹالز بھی سج گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے منڈی کی، وہ وہاں آنے والے شہریوں کو اور جو بیوپاری ہیں انہیں فیسلٹیٹ کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان میں ویسے لائیو سٹاک سیکٹر کی کیا صورتحال ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہوا، اب نئی حکومت آنے کے بعد سے لائیو سٹاک سیکٹر کو کن مسائل کا سامنا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ مویشی منڈی کی اپڈیٹ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے، وہاں کے ریٹس اس وقت کیا چل رہے ہیں، وہاں انتظامات کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد فیصل سلیم صاحب، جو کہ سینئر نائب صدر ہیں ڈلفا کے، جو کہ ڈیری اینڈ لائیو سٹاک فارمرز ایسوسی ایشن ہے۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ناظرین، تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے جناب حارث علی مٹھانی صاحب، جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں ڈلفا کے، ان سے ہم منڈی کے حوالے سے صورتحال پہ بات چیت کریں گے۔ فی الحال احمد صاحب، آپ بتائیے کہ فارمرز کو اب کن مسائل کا سامنا ہے اور کیا کچھ بہتری ہوئی ہے گزشتہ کچھ سالوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فارمر تو ہمیشہ سے پریشان ہی رہا ہے۔ ایک تو بہت سارے مسائل اس کے یہ ہیں کہ ایک تو پرائس کیپنگ ہے، دودھ کے اندر پرائس کیپنگ اور میٹ کے اندر پرائس کیپنگ۔ اجناس کے اندر تو ہماری پرائس کیپنگ نہیں ہوتی۔ اچھا، اجناس انٹرنیشنل مارکیٹ یا لوکل مارکیٹ کے حساب سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، بڑھتی ہے، کم تو ہوتی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دودھ کی پرائسنگ کو لاک کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم فارمر پریشانی رہتا ہے۔ نمبر دو بات، ہماری جو جتنی بھی جانوروں کی خوراک ہے، توری ہے، سائلیج ہے، روڈ گراس ہے، مکئی ہے، یہ سب ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے، اور ہم پھر وہ کھلانے پہ مجبور ہوتے ہیں جو انسانوں کو کھلایا جاتا ہے۔ گندم کھلائی جاتی ہے، اچھی کوالٹی کی مکئی، کیوں کہ ہماری وہ ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے۔ ایکسپورٹ کیوں کر دی جاتی؟ زر مبادلہ کے ہے، بغیر ویلیو ایڈیشن کے کر دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جی آپ اس کی، ہمارے پاس ڈیری کے وہاں سے آرڈر آتے ہیں، باہر سے کوئی بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیری بھیجیں، لیکن ہم ڈیری کا ہمیں سپورٹ نہیں ملتی گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہمیں ونڈا اتنا مہنگا ملتا ہے، توری ہماری یہاں بھوسی آج اس سیزن کے بعد، سیزن کے فوراً بعد 850 روپے کا ریٹ چل رہا ہے۔ کس طرح سے وارہ کھائے گا فارمر؟ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دوسرا، پاکستان کے فوڈ لا کے حساب سے 3.5 فیٹ کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ 3.5 فیٹ ہمیں لوگوں کو دینی ہے۔ پاکستان کی فوڈ لا ایک کتاب ہے، تو لا کے قانون اس پہ بنے ہوئے سارے۔ ڈیلفا اس پہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ 3.5 فیٹ کا دودھ فارمر سے لیا جائے اور وہی آگے عوام الناس کو دیا جائے، اینڈ یوزر تک پہنچے۔ اچھا، ہم سے تو مانگتے ہیں 6.5 فیٹ کا دودھ، اور یہ کون مانگتے ہیں؟ آگے جو دکاندار ہیں، ڈیلر جو ہیں، پیکار وغیرہ ہے، مڈل مین ہے۔ اچھا، مسئلہ یہی رہتا ہے کہ وہ 6.5 فیٹ کا دودھ مانگتے ہیں، وہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا، مجبوراً ہمیں جو ہے فارمر دیوالیہ ہوتا ہے، لاس میں ہوتا ہے۔ ڈیلفا اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ یار فارمر کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہر مقام پہ ویکسینیشن پہ ہر جگہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن جہاں پرائس کیپنگ کی بات آتی ہے پھر فارمر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہر روز نئے لوگ آ رہے ہیں، اتنا پوٹینشیل ہے، اتنی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے سب کا، لیکن ویسے جو دودھ کے ریٹیلر ہے، اور باقی آپ نے دودھ کا ذکر کیا تو اس حوالے سے ایک ضرور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ریٹیلرز اور جو مڈل مین ہیں وہ تو سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں فارمر پہ۔ وہ کہتے ہیں بھائی فارمر ہی اتنا دودھ مہنگا دیتا ہے تو ہم شہریوں کو ہم بھی مہنگا دینے پہ مجبور ہیں، تو سارا منافع کیا فارمر ہی لیتا ہے؟ سر، میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج جب ہم جہاں کھڑے ہوئے 850 روپے توری ہے، 2 سال پہلے یہ 300 350 400 روپے ہوتی تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ 1300 روپے مکئی ہوتی تھی، 1350 روپے۔ آج بہاریہ مکئی جو فریش مکئی آ رہی ہے وہ 2200 2500 روپے کی مکئی آ رہی ہے۔ کیا ڈالیں؟ کہاں سے ڈالیں؟ اور دنیا بھر کے اندر تو 3.5 فیٹ کا دودھ ہے۔ آپ بھی فارمر سے 3.5 فیٹ کا دودھ لینا شروع کریں اور یہ اجناس کی ایکسپورٹ آپ بند کریں، ہم 120 روپے بیچیں گے، ہم سستا بیچیں گے دودھ۔ ہماری ویسے آپ کتنے میں پرووائڈ کرتے ہیں دودھ؟ ہم اس کو 150 140 130، اس پہ دودھ کی ڈیپینڈ پہ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو کہ اسٹینڈرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا 3.5 فیٹ کا دودھ ہے، اسے کیوں نہیں فالو کرتے لوگ؟ گورنمنٹ اس پہ امپوز کیوں نہیں کرتی 3.5 فیٹ کا دودھ؟ ڈیلفا اس کے لیے ہر مقام پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ہر مقام پہ آپ گورنمنٹ رولز کو فالو کریں نا، یہ فیٹ مافیا کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے؟ تو یہ بتائیے کہ دودھ تو چلو مہنگا، آپ نے بتایا کہ اس طرح سے لاگت اس کی زیادہ آ رہی ہے، تو گوشت بھی مہنگا ہو گیا؟ سر دیکھیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے۔ ہمارے یہاں گوشت کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ گئی ہے، اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ گوشت کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے۔ پہلے جہاں تک مجھے آئیڈیا تھا، میں نے معلومات دی تھی، 25 لاکھ کے جی ایکسپورٹ پر منتھ ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بڑے بڑے پلانٹ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایون کہ چائنیز یہاں پہ آ کے ہمارا گوشت پاکستان سے میٹ مانگتے ہیں، ملیشیا مانگتے ہیں ہم سے، ہمارے یہ یو اے ای جاتا ہے۔
सऊदी अरब जा रहा है और मुस्तकिल डिमांड है। इवन के हमारे यहाँ अफवाहें ऐसी घूमती हैं कि लंपी स्किन डिजीज, लेकिन लंपी स्किन डिजीज के तहत भी ये लोग मांगते हैं, लेते ही हैं लोग, क्योंकि उनको मालूम है लंपी स्किन डिजीज कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ एक शोशा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए उससे ज्यादा खतरनाक बीमारियां दुनिया में होती हैं, यहाँ नहीं है। कोरोना है, केसेस तो काफी हुए, गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किए केसेस। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट करा, लेकिन वो इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है ना, वो जोनोटिक नहीं है कि जी आप इंसान जानवरों से इंसान को या इंसानों से जानवरों को मुतवज्जो। चलें, राइट, लंपी स्किन डिजीज के हवाले से भी बात करते हैं और मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है इस पर हम बात कर लेते हैं। पहले हमें ज्वाइन कर लिया है टेलीफोन लाइन पर जनाब हारिस अली मिठानी साहब ने, जो कि पैटर्न चीफ हैं डल्फा के। अस्सलाम वालेकुम हारिस अली मिठानी साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप अख्तर शाहीन साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन आपको बता दूं कि हारिस अली मिठानी साहब इस वक्त भी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। तो हारिस साहब बताइएगा कि मवेशी मंडी की रौनकें कैसी हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, और रेट की जो है ख़ास तौर पे उस पर भी मैं जानना चाहूँगा कि रेट्स की क्या सूरत हाल है वहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और हर साल की तरह इस साल भी जो है ये फेस्टिवल जो होता है ईद उल अज़हा का मवेशी मंडी का, वो सज चुका है। और यहाँ पर जितने भी कैटल ब्रांड्स हैं कराची के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अपना डिस्प्ले, अपना एग्जीबिशन उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा जो पूरे पाकिस्तान से जितने सारे फार्मर्स यहाँ पर अपने जानवर लेकर आते हैं जिनसे सुन्नत इब्राहिमी अदा होता है, वो सब भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। ऑर्गेनाइज मंडी है हर साल की तरह, एडमिनिस्ट्रेटर मंडी और ओआईसी मंडी समेत तमाम लोग बहुत जो है वो इस वक्त इस हवाले से कॉन्शियस हैं कि तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो ऐसे हों जो आने वाले के लिए भी फैसिलिटेशन डेस्क है यहाँ पर, उनको भी आसानी फराम हो, और जो यहाँ पर फार्मर्स हैं उन्हें भी जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर जो है वो मौका मिले काम करने का या अपने कारोबार का। हारिस साहब ये बताइए कि मंडी में अब क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पे जो सारे स्टॉल्स हैं या जो सारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर क्या वो ऑक्यूपाई हो गए हैं या अब भी मंडी काफ़ी खाली है? नहीं, जो एक तरीकेकार होता है उस अंदाज से अभी यहाँ पर जानवर जो है वो लाए जा रहे हैं। और तकरीबन इस वक्त हमारे पास हम ये समझते हैं कि मंडी में यहाँ पर 70 to 80% जो कंजप्शन है उसका 70 to 80% यहाँ पर पहुंच चुका है, आ चुका है। और बाकी जाहिर है सब दूसरे सूबों से भी आते हैं तो वो ऑन वे हैं। और जहाँ तक बात है जानवरों की, तो देखें जिस तरीके से दीगर ग़िज़ाई अजनास में इजाफा हुआ है उसी अंदाज से यहाँ पर जो है वो जानवरों की कीमत में भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। और उसकी वजह यकीनन यही है कि जो हम और आप जो है वो खाते हैं वही इन्हीं सारी प्रोडक्ट्स के जरिए जो है वो जानवर की नशोनुमा होती है। तो डेफिनेटली पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो थोड़ा सा जानवर ओवर कॉस्ट कर रहा है। लोगों को थोड़ा सा अपनी जो है वो लिमिट्स को, अपनी रेंज को बढ़ाना होगा। और जो है जानवरों की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर मंडी में बाकायदा तौर पर हमारे पास जो है वो ऐसा बाकायदा मंडी में यहाँ एक सिस्टम मौजूद है कि जो भी जानवर मंडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो बाकायदा तौर पर उनकी वैक्सीनेशन कार्ड देखा जा रहा है, वो वैक्सीन्ड हैं। और उसके अलावा जिनके पास अगर वैक्सीन कार्ड नहीं है तो उन्हें फिर मंडी में दाखिले पे पाबंदी लगाई हुई है। जहाँ से जानवर जो है, जिस मार्शलिंग से जहाँ से जानवर अंदर आते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम वेटनरी की मौजूद है और सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पे 24 आवर्स मौजूद है जो इस चीज को बाकायदा तौर पर सर्च कर रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो ये हिदायत जारी हुई है फार्मर्स को भी कि वो मंडी में ऐसे किसी जानवर को ना लेके आए जो किसी भी किस्म की स्किन अफेक्टेड डिजीज या फिर किसी किस्म की कोई और वायरस का शिकार हो। तो इंतजाम अच्छे हैं, लोगों को आसानी रहेगी इंशाल्लाह। और हर साल की तरह इस साल भी मैं समझता हूँ कि लोग बेहतर अंदाज से इंशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकेंगे। जहां तक प्राइजेस का है तो वो यकीनन एक जेन्युइन मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। वही मसला जो है वो फार्मर्स का भी है कि जानवर जो है उसकी नशोनुमा और उसकी जो है वो ग़िज़ा जो है ग़िज़ाई अजनास महंगा होने की वजह से उसकी कदर कीमत में इजाफा हुआ है। अच्छा मिठानी साहब ये बताइए कि जैसे आपने प्राइसेस की बात की है तो डेफिनेटली ऐसा तो होगा ना कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मुख्तलिफ प्राइसेस के जानवर मौजूद होंगे और बहुत सारे लोग जिनकी जितनी भी रेंज है कम है तो वो कम के हिसाब से ले सकते हैं, दरमियाने साइज़ की है तो वो उससे ले सकते हैं। और वीवीआईपी ब्लॉक्स भी वहाँ पर जो है वो सज चुके हैं, तो उनकी क्या सूरत हाल है वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं खरीदार? ये तो खैर इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुर्बानी करने वाले और अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने वाले पे अल्लाह ताला की खास इनायत होती है। जो भी आता है लाख रुपए लेकर भी जो आता है उसको भी उसकी मर्जी का, उसकी पसंद का जानवर मिल जाता है। तो हर कैटेगरी के जानवर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक मखसूस कैटेगरी का हो।
1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक के जानवर होते हैं, जिस कुछ शौकीन हजरात के लिए होते हैं जो शौक के तौर पर, और कुछ इसको फरीजा कुर्बानी के तौर पे अदा कर रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। यहाँ पर इसमें बहुत सारे लोगों को, बच्चों बड़ों को, घर के फैमिली के बहुत सारे लोगों को एक शौक होता है, तो वो शौक से फिर जो है वो आते हैं मिलके और मुख्तलिफ जो है वो वीवीआईपी स्टॉल्स का विजिट करते हैं और उसमें फिर जो है वो हैवी वेट जानवर पसंद करके अपनी मर्जी का लेके जाते हैं। वो एक सिलसिला अलग है जो कि बाकायदा तौर पर जारी है। और कुछ लोग फरीजा कुर्बानी या सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जो है वो इस चीज को कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर यकीनी तौर पर बेताशा बहुत सारे अच्छे खूबसूरत जानवर मौजूद हैं जो कि हर कैटेगरी में है। मैंने आपसे कहा जैसे कि लाख रुपए से लेके 50 लाख तक के जानवर इस मंडी में उतारे गए। जी बिल्कुल सही है। और ये बताइए कि वहाँ इंतजाम कैसा है, वहाँ आने वाले शहरियों के लिए कोई आप मशवरा देना चाहेंगे उन्हें कि वो किस तरह से? मैं जो है इस बात को कैटेगोरिकली कहूंगा, हालांकि हम फार्मर्स की एसोसिएशन है डल्फा, हम अगरचे इसमें कहीं पर भी हमें वो होता तो हम जरूर इस बात का शिकवा करते, लेकिन हम बेहद मुतमईन हैं। आज भी एक इमरजेंसी मीटिंग रेन डिजास्टर के लिए या रेन के जो है वो इमरजेंसी के लिए जो है रेन इमरजेंसी के तौर पर बुलाई गई, फार्मर से भी राय ली गई, इंतजामिया ने जो है वो रेन जो उसके खदशा है कि वो आएगी तो उसके हवाले से भी उन्होंने इंतजाम किया है ताकि आने वालों को भी तकलीफ ना हो और यहाँ मौजूद फार्मर्स को भी ना हो। और इसके अलावा इंतजाम बहुत अच्छे हैं और बड़े विजनरी किस्म के ओआईसी मंडी जो है वो सोच के मालिक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इंतजाम अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से ज्यादा बेहतर इंतजाम हमें इस बार नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह समझते हैं कि ये फेस्टिवल अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा और कामयाबी से इंशाल्लाह अपने इख्तिताम पजीर होगा। चलिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ सलीम मिठानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे टेलीफोन लाइन पर। और जनाब अहमद फैसल साहब, तो ये बताइए कि फार्मर्स जो हैं वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं, मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे प्लान भी करते हैं कि जानवरों को उसी तरह से, उसी मोहब्बत और उसी अकीदत से पालते हैं, फिर पाल कर यहाँ लाते हैं, चीज़ें करते हैं। तो जो जानवर की प्राइसेस के हवाले से जो बात हो रही है तो वो उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखिए हर किस्म के जानवर यहाँ पे आते हैं, बकरे से लेके ऊँट तक का। जैसे हारिस साहब ने कहा कि जी 50 लाख रुपए का भी जानवर आता है, तो ये सब शौक की बात है और हर कैटेगरी का माल है, कोई खाली हाथ नहीं जाता मंडी से अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह फार्मर भी जो आता है, हर किस्म का छोटा फार्मर भी है, बड़ा फार्मर भी है। और हमारे मुल्क एक ज़राई मुल्क है, पता है आपको, 60% आबादी हमारी ज़राअत से वाबस्ता है। तो वो इस साल के लिए, इस महीने के लिए डिपेंडेंसी होती है कि ये आएगा, ये बेचेंगे, तो अपने घर में ये करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, कर्जा उतारेंगे, खाद, यूरिया, 50 यूँ चीज़ें होती हैं जो इस त्यौहार से अल्लाह ताला ने जो चल रही होती है उधार पे, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है फिर उस फार्मर को अल्लाह ताला साल के आखिर में कहीं ना कहीं तो बेनिफिट देता ही है उसका। उसकी कैसे कमिटी डली हुई होती है, इसमें हर तरह का फार्मर होता है, हर एक की उसकी नीड पूरी करता है अल्लाह मियां। राइट। वैसे ये बताइए कि जानवरों की खुराक का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, कुछ उसके हवाले से भी आप मशवरा दे दें। सर अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखा जाता है। आप अभी आके देखें, आप रस्सी खोलें, जानवर आपके साथ घूमेगा फिरेगा। हर तरह के जानवर हर एक के पास होते हैं, हर तरह से पलते हैं जानवर, घरों में पालते हैं लोग। छोटा फार्मर तो घर में पालता है ना, 4-5 जानवर है, वो तो उसको बेचकर अपना गंदम के मौसम में गंदम खरीदता है, चावल के मौसम में चावल खरीदता है। वो तो फार्मर तो फिर हमारी तो बेस इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर है ना। एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में ये सब चीज़ें तो आती हैं लाजमी। तो जानवरों के चारे में क्या प्रेफरेंस हो सकती है या अवेलेबल जो चीज़ें होती हैं उसमें? जानवरों के चारे का यही मसला मैं आपसे डिस्कस कर रहा। जानवरों के चारे जो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं उसके ऊपर 100% बैन लगाया जाए। हम किसी को बैन, हम वैल्यू एडिशन करके बेचें, हम जानवर को तैयार करके बेचें, मीट को हम अपनी लोकल नीड तो पहले रखें, लोकल नीड को हम पहले रखें ताकि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल है। प्राइस बढ़ने की एक वजह ये भी है कि हम इसका चारा एक्सपोर्ट कर देते हैं। मीट जाहिर बात है, फार्मर को अगर महंगा मिलेगा तो जाहिर बात है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, चाहे वो दूध की कॉस्ट हो, चाहे वो गोश्त की कॉस्ट हो, चाहे वो अंडे की कॉस्ट हो। अंडा बढ़ गया तो मुर्गी को भी तो कुछ खिलाना ही है ना, मकई खिलानी है। आप देख लें मकई कहाँ पहुँच गई। तो बस आखिरी आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि बजट आ गया है, नया बजट, और उसमें फार्मर्स के लिए कुछ आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा? नहीं सर, मुझे तो कोई ऐसा फार्मर को ऐसा कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दिया। क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो जिससे इस इंडस्ट्री को भी फायदा हो? गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, सब्सिडीज चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, हमें जो है ब्रीड चाहिए ऐसी, हमें हाइब्रिड बीट चाहिए, हर तरह की सपोर्ट चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, ना फेडरल ना सूबाई, माज़रत के साथ। तो आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? सर फार्मर आपकी बैकबोन है, ठीक है जी। 7 करोड़ हेक्टर के ऊपर आपका एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत बड़ी बात है। 7 करोड़ में से 1 करोड़ हेक्टर आपका फॉरेस्ट है। उस 6 करोड़ हेक्टर जो ज़मीन है उसमें से सिर्फ 4 करोड़ हमारी इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ पोटेंशियल 2 करोड़ हेक्टर ज़मीन का।
فارمر کو کھڑا کریں, فارمر کو سپورٹ کریں, سبسڈی دیں, ٹیکنالوجی دیں. آج دیکھیں دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک صرف ایگریکلچر بیس کرتے ہیں. ہم اپنی گندم کی بات کریں تو وہ 60 من دیتی ہے اور دوسرے ملکوں میں 100 من دیتی ہے. ہماری یہاں گائے 12-15 کلو دیتی ہے, ان کی گائیں 100 کلو دیتی ہے 24 گھنٹے میں. صرف گورنمنٹ سپورٹ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر. چلیں, بہت شکریہ آپ کا احمد so فیصل much. سلیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. انشاءاللہ پھر کسی اور شو میں, ٹاپکس تو بہت سارے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا. انشاءاللہ تعالیٰ فارمر کی آپ نے آواز کو سنا اور آگے اب انشاءاللہ فارمر کی آواز کو آپ ضرور رکھ دیں گے, کیونکہ 60% اکنامی جو ہے ہماری آبادی وہ فارمرز کے اوپر ہے, زراعت سے وابستہ ہے. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, یہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں محکمہ صحت کی جانب سے, وزیر صحت کی جانب سے جو صحت کے اعلیٰ معیار یا بہتر خدمات کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ واقعی میں سچ ہیں یا صرف دکھاوا ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.